Hello dear students, in this video I will discuss the in-text questions of chapter Life Processes, class 10th Science. Question number 1. Why is diffusion insufficient to meet oxygen requirement of multicellular organisms like humans? As we know that diffusion is a process by which gases and liquids move inside and outside of any cell, and diffusion is a very slow process. इसलिए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं एनवायरनमेंट के, या तो एयर या तो वाटर, तो डिफ्यूजन आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, तो क्योंकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की सारी सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में है नहीं एनवायरनमेंट के, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए हमें स्पेशलाइज्ड सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत होती है। इसलिए द आंसर कैन बी रिटन एज in multicellular organisms, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. Thus, simple diffusion will not meet the requirement of all these cells. Question number 2. What criteria do we use to decide whether something is alive? कोई चीज़ लिविंग है, अलाइव है, ज़िंदा है, ये डिसाइड करने के लिए कौन से बेसिक फीचर्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे, वो हमें बताना है। वी कैन से दैट रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन डिसाइड्स वेदर अ सेल इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। बट इन सभी चीज़ों का कोई ना कोई एक्सेप्शन हमें मिल जाता है। बट देयर इज़ अ पॉइंट और वन क्राइटेरिया जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो कि है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट की, तो ईच एंड एवरी लिविंग सेल हैज़ साइटोप्लाज्म इन इट, और उस साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती रहती हैं, जिसके कारण एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों ही चल रहा है सेल के अंदर। तो सेल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं लिविंग सेल्स के, और जो नॉन लिविंग सेल हैं उसमें साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स नहीं होती हैं। इसलिए बेसिक फीचर जो कि डिसाइड करेगा वो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट, एंड द आंसर कैन बी रिटन एज any visible movement such as walking, breathing or growing is generally used to decide whether something is alive or not. However, a living organism can also have movement which are not visible to naked eye. Therefore, the presence of molecular movement inside the organisms are used to decide whether something is alive or not. Question number 3. What are outside raw materials used by an organism? कोई भी ऑर्गेनिज्म दो चीज़ें मेनली यूज़ करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी और फूड, और ऑक्सीजन, जो कि रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन चीज़ों को किसी ना किसी ऑर्गेनिक सोर्स या फिर कार्बोनिक सोर्स से ही लेंगे, क्योंकि अर्थ पे जो भी फूड मटेरियल है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। उस फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो बनाया गया फूड है उसे ही सारे ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे हैं। तो हम आंसर इसका लिख सकते हैं, एन ऑर्गेनिज्म यूजेस आउटसाइड रॉ मटेरियल्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, most of these food sources are also carbon based. The raw materials required by an organism can be quite varied depending on complexity of organism and its environment. Question number 4. What processes would you consider essential for maintaining life? Answer. Life processes such as nutrition, respiration, transportation, excretion and reproduction are essential for maintaining life. Questions on page 101. Question number 1. What are the differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? As we all know that autotrophic nutrition is the mode of nutrition where inorganic substances are used to synthesize organic substance,
or these organisms synthesize their own food. But in case of heterotrophic nutrition, organisms depend on others for their food. So in this question we can write, first point, in autotrophic nutrition, food is synthesized from simple inorganic raw material such as carbon dioxide and water. Heterotrophic nutrition, first point, food is obtained directly or indirectly from autotrophs. This food is broken down with the help of enzymes. Second point, presence of green pigment or chlorophyll is necessary for photosynthesis in autotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition, second point, no pigment is required in this type of nutrition. Third point, in autotrophic nutrition, food is generally prepared during daytime, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है और सनलाइट हमें दिन में मिलती है, इसलिए यहाँ पर जो फूड है वो जनरली दिन के टाइम प्रिपेयर किया जाता है. लेकिन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसा कोई बैरियर नहीं होता है, इसलिए फूड कैन बी प्रिपेयर्ड एट ऑल द टाइम्स. Fourth point, in autotrophic nutrition, all green plants and some bacteria have this type of nutrition. हमने यहाँ देखा प्लांट के बारे में तो हमें मालूम है कि ऑटोट्रॉफ होते हैं प्लांट, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, उन्हें भी हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, लेकिन कीमो ऑटोट्रॉफ उन्हें बोलते हैं. और प्लांट्स को हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं. इसलिए दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑटोट्रॉफ हैं, प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. फोर्थ पॉइंट, इन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑल एनिमल्स एंड फंजाई हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. तो सारे एनिमल्स किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, इसलिए वो सभी हैं हेट्रोट्रॉफिक. और फंजाई एग्जाम्पल है हेट्रोट्रॉफ्स का. क्वेश्चन नंबर 2, where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? We know that carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight is required for photosynthesis. We get carbon dioxide from our atmosphere and it enters through stomata of leaf. Second, water is absorbed from soil by plant roots. Chlorophyll is there inside the green leaves. And last, fourth point, sunlight we get from or plant get from the sun. Question number 3, what is the role of acid in our stomach? जो हम फूड मटेरियल खाते हैं तो उस फूड के साथ कभी कभी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो एंटर्स इन आवर स्टमक. तो उन हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमें एक तो HCl की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोपेप्सिन और इनएक्टिव फॉर्म में होता है हमारे स्टमक में. तो उस पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक pH की ज़रूरत होती है जो HCl प्रोवाइड करता है. तो उस HCl के कारण पहले इनएक्टिव पेप्सिन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में और फिर हेल्प करता है प्रोटीन डाइजेशन में. सो द आंसर कैन बी रिटन एज रोल ऑफ द एसिड HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक. फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज टू किल जर्म्स और बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड. Second point, it makes the food acidic so that pepsin can digest protein. Question number 4, what is the function of digestive enzymes? Digestion is the breaking down of complex food material into simpler food materials which can be absorbed by our intestine or small intestine. So these enzymes help in breaking down of complex food material into simpler ones. Answer can be written as digestive enzymes such as amylase, lipase, pepsin, trypsin help in the breaking down of complex food particles into simple ones. These simple particles can be easily absorbed by blood and thus transported to all cells of the body. अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये एंजाइम्स के नाम हैं.
एमाइलेज हेल्प करता है स्टार्च के और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। लाइपेज फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइंड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो इनर लाइनिंग इनफोल्डेड होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में। तो अब जब बहुत सारे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग पे, तो जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो एब्जॉर्प्शन फूड का ज़्यादा होगा। इसलिए सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए डिज़ाइंड होती है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। आंसर हम लिखेंगे, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। These villi increase the surface area for food absorption. Within these villi, many blood vessels are present that absorb the digested food and carry it to bloodstream. From the bloodstream, the absorbed food is delivered to each and every cell of the body. Questions on page 105. Question number 1. What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? यहाँ हमसे पूछा है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं और जो अर्थ सरफेस पे रह रहे हैं ऑर्गेनिजम्स वो कैसे अच्छे हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स से ऑक्सीजन अपटेक के मामले में। तो हमें मालूम है कि जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो वाटर में उसका अमाउंट कम होता है जबकि एयर में उसका अमाउंट ज़्यादा होता है। तो अगर वाटर से ऑक्सीजन लेना है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को तो वहाँ ब्रीदिंग रेट फास्ट रखनी पड़ेगी उनको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, जबकि एयर से इजीली ऑक्सीजन को ब्रीद इन किया जा सकता है। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो थोड़ा सा एडवांटेज रखते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से। आंसर हम लिखेंगे, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। Therefore, unlike aquatic animals, terrestrial animals do not have to show various adaptations for better gaseous exchange. Question number 2. What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? We know that breakdown of glucose to release energy is called respiration. और इसके दो टाइप हो सकते हैं, या तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और या तो वो होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों ही केसेस में जब हम फूड मटेरियल लेते हैं तो अल्टीमेटली डाइजेस्ट होके वो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे हर एक सेल के पास पहुंच जाता है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में है ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज का होना है ब्रेकडाउन, डिफरेंट मोड हैं उसके, जो 3 मोड हैं वो हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट, ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है and it is present there in cytoplasm. In cytoplasm it is converted into pyruvate, और जो पाइरूवेट है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ये एनारोबिक और एरोबिक दोनों ही केसेस में सेल के साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ। इसके बाद अब अलग अलग तरीके से इसका फर्दर डाइजेशन होगा। फर्स्ट, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि ईस्ट सेल में होता है, फंगस में होता है, इसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो ये पाइरूवेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी के 2 मॉलिक्यूल एटीपी के रिलीज़ करेगा। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा जो केस है वो है जैसे हमारे मसल्स में होता है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब विगरस एक्सरसाइज करते हैं या ज़्यादा काम करते हैं तो मसल क्रैम्प होना शुरू हो जाता है, मसल में दर्द शुरू होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो पाइरूवेट आगे फर्दर उसका डाइजेशन होना था, तो ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है तो वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में।
जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और कुछ अमाउंट में एनर्जी हमें मिलती है। थर्ड केस है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट डाइजेशन होता है पायरूवेट का, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनते हैं। तो हमारा आंसर होगा कि 3 तरीके से हम डाइजेशन कर सकते हैं ग्लूकोज का, या फिर 3 तरीके से जो रेस्पिरेशन है वो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं एयर में। एयर से जब हम ब्रीद इन करते हैं तो लंग्स की एल्वियोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है एल्वियोलर एयर में, तो वहाँ से डिफ्यूज़ होके जो ऑक्सीजन है वो पहुँचती है हमारी डिफरेंट ब्लड वेसल्स में। अब जो ब्लड वेसल है वो ब्लड वेसल उसको कैरी करके पहुँचाएगी ऑक्सीजन को हार्ट तक। हार्ट पंप करेगा बॉडी में, बॉडी टिश्यू यूज़ करेंगे उस ऑक्सीजन को और उस डिफ्यूज़ कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर। ये ब्लड वापस जाएगा हार्ट में और फिर से पहुंचाया जाएगा इसको प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स तक। तो इस तरीके से जो ब्लड है, ब्लड हेल्प करता है इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर body. We can write the answer like hemoglobin transports oxygen molecule to all the body cells for cellular respiration. The hemoglobin pigment present in blood get attached to O2 molecule or oxygen molecule that are obtained from breathing. It thus forms hemoglobin, that is called oxyhemoglobin, and the blood becomes oxygenated. This oxygenated blood is then distributed to all the body cells by heart. After giving away oxygen to the body cells, blood takes carbon dioxide, which is the end product of cellular respiration. Now the blood becomes deoxygenated. Since hemoglobin pigment has less affinity for carbon dioxide, CO2 mainly transported in the dissolved form. This deoxygenated blood gives carbon dioxide to lung alveoli and takes oxygen in return. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व होके मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? जो लंग्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो पाए, तो ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है लंग्स में? कैसे डिज़ाइन किया गया है लंग्स? वी नो दैट एल्वियोलाई आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, और एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है वो है बहुत थिन और मॉइस्ट, जिस कारण वहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो आसानी से हो पाता है। तो कई सारे एल्वियोलाई होते हैं लंग के अंदर, इस कारण जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो मैक्सिमाइज होता है। तो हम आंसर लिखेंगे, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज दैट सराउंड द एल्वियोलाई एंड द गैसेस प्रेजेंट इन एल्वियोलाई। Thus alveoli are the site for exchange of gases. The lungs get filled up with air during the process of inhalation as ribs are lifted up and diaphragm is flattened. The air that is rushed inside the lungs fills the numerous alveoli present in the lungs. Each lung contains 300 to 350 million alveoli. These numerous alveoli increase the surface area for gaseous exchange, making the process of respiration more efficient. तो इसमें हम आंसर मेनली लिखेंगे that each lung contain 300 to 350 million alveoli. These alveoli increase the surface area for gaseous exchange, making the process of respiration more efficient. Now let's move to page 110. Question number 1. What are the components of the transport system in human beings? What are the functions of these components? इसमें हमें बताना है जो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ह्यूमन ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं।
तो क्योंकि ब्लड को पंप करना है तो सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट होगा हार्ट, और सारी के सारे जो सब्सटेंस हैं वो ब्लड में ही डिफ्यूज्ड होते हैं, ब्लड में ही घुले हुए होते हैं, चाहे वो गैसेस हों या फिर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हों या फिर जो एलिमिनेट करना है हमें अपनी बॉडी से वो मटेरियल हों। तो दूसरा कंपोनेंट है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ब्लड, और थर्ड कंपोनेंट जो माइन्यूट कैपिलरीज होती हैं और जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम वेसल्स बोलते हैं, ब्लड वेसल्स, 3 टाइप के हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। वो तो 3 कंपोनेंट हैं मेनली, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हम आंसर लिखेंगे द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स आर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। फर्स्ट पॉइंट, हार्ट. Heart pumps oxygenated blood throughout the body. It receives deoxygenated blood from the various parts of body and sends this impure blood to the lungs for oxygenation. Second point, blood. Blood is a fluid connective tissue. It helps in transport of oxygen, nutrients, carbon dioxide and nitrogenous wastes. Third point, blood vessels. Arteries, veins and capillaries. These carry blood either away from the heart to various organs or from various organs back to the heart. Question number 2. Why it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? As we know that mammals and birds, they are homeotherms, और जो ये ऑर्गेनिज़म हैं मैमल और या फिर बर्ड, इनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए चाहिए पड़ती है एनर्जी, और एनर्जी हमें मिलेगी रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होगा ऑक्सीजन। तो अगर हार्ट के अलग अलग चेम्बर्स में प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर सेपरेट नहीं किया जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो इनएफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होगी। लोअर ऑर्गेनिजम्स क्योंकि इतना काम नहीं करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी ब्लड मिक्सिंग फिर भी चल जाती है, लेकिन हायर ऑर्गेनिजम्स में ब्लड मिक्सिंग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाएगी उसकी फंक्शनिंग। इसके लिए क्योंकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, तो ब्लड की मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है हायर ऑर्गेनिजम्स में। तो हम आंसर लिखेंगे warm-blooded animals such as birds and mammals maintain a constant body temperature by cooling themselves when they are in a hotter environment and by warming their bodies when they are in a cooler environment. Hence, these animals require more oxygen for more cellular respiration so that they can produce more energy to maintain their body temperature. Thus, it is necessary for them to separate oxygenated and deoxygenated blood so that their circulatory system is more efficient and can maintain their constant body temperature. Question number 3. What are the components of transport system in highly organized plant? जैसे हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड हमने पढ़ा, these were the components for ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। वैसे ही अब हमें बताना है कि जो प्लांट्स हैं उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो एज वी नो दैट जाइलम एंड फ्लोएम, these two cells are responsible, these two tissue systems are responsible for transport. Answer can be written as, in highly organized plant there are 2 different types of conducting tissues, xylem and phloem. First point, xylem. It conducts water and minerals obtained from the soil via roots to the rest of the plant. Second point, phloem. It transports amino acids and food material from the leaves to different part of plant body. Question number 4. How are water and minerals transported in plants? अभी हमने देखा कि जो वाटर एंड मिनरल्स है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जाइलम टिश्यू के 4 कंपोनेंट होते हैं, ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इन कंपोनेंट्स में ट्रेकीड्स और वेसल ये ट्यूब्यूलर कंपोनेंट हैं और एक ट्यूब्यूलर चैनल बनाते हैं, पाइप के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लांट के अंदर, थिन पाइप्स।
जो कि अटैच्ड हैं एक दूसरे से, और रूट से वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और पहुंचाते हैं लीफ तक। हमें मालूम है कि ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है जिसमें इवेपोरेशन होता है वाटर का थ्रू स्टोमेटा। तो जब स्टोमेटा से वाटर इवेपोरेट हुआ तो नीचे के सेल्स में जहाँ पे जाइलम है वहाँ पे एक वाटर कॉलम बन जाता है सक्शन प्रेशर के कारण। क्योंकि इवेपोरेशन हुआ तो जो एरिया ब्लैंक हुआ सेल के अंदर, लीफ के अंदर, वहाँ पे एक सक्शन पुल क्रिएट होगा जिसके कारण नीचे की सेल से वाटर को पुल किया जाएगा, और यही सक्शन प्रेशर और ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है वाटर और मिनरल के कंडक्शन में। आंसर लिखेंगे, द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू, ट्रैकीट्स एंड वेसल of root, stem and leaf are interconnected to form a continuous system of water conducting channels that reaches all parts of plant. Transpiration creates a suction pressure as a result of which water is forced into the xylem cells of the root. Then there is a steady movement of water from root xylem to all plant parts through the interconnected water conducting channels. Question number 5. How is food transported in plants? As we know that food is synthesized inside the leaf cells. अब जब फूड सिंथेसाइज हुआ जो स्टार्च के फॉर्म में लीफ सेल्स में इकट्ठा होता जाएगा। अब जब स्टार्च जमा होगा तो वो अपने साइड वाली सेल से वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, और वाटर और स्टार्च या फिर सुक्रोज जो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं वो मूव करना शुरू करेंगे एक सेल से दूसरे सेल तक। तो लीफ सेल में क्योंकि स्टार्च और अदर मटेरियल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ से दूसरे सेल्स जहाँ इनका कंसंट्रेशन कम है उस तरफ फ्लोएम के थ्रू मूवमेंट शुरू होगा। अब जब लीफ सेल में बहुत सारा स्टार्च एंड अदर सब्सटेंस एक्यूमुलेट होते हैं तो वहाँ पे उस एक्यूमुलेशन के लिए हमें एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है। तो आंसर हम लिखेंगे, Phloem transports food material from leaf to different part of the plant body. The transportation of food in phloem is achieved by utilizing energy from ATP. As a result of this, the osmotic pressure in the tissue increases, causing water to move into it. This pressure moves the material in the phloem to the tissue which have less pressure. This is helpful in moving material according to need of the plant. For example, the food material such as sucrose is transported into phloem tissue using energy. Questions on page 112. Question number 1. Describe the structure and functioning of nephron. Nephron are the basic structural and functional unit of kidney. Approximately 1 million or 10 lakh nephrons are there in one kidney. अब ये जो नेफ्रॉन है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, थिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं जो सेपरेट करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को ब्लड से। तो पहले हम देखेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। आंसर लिखेंगे, नेफ्रॉन्स आर बेसिक फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ किडनी. Each kidney possess large number of nephron, approximately 1 to 1.5 million. The main components of nephron are glomerulus, Bowman's capsule and long renal tubule. इसको पहले समझ लेते हैं। The first part, which is cup shaped, this is called Bowman's capsule. It has elongated pipe-like structure. अब ये जो elongated tubular structure है, it is coiled and has one loop-like structure. This structure, which is coiled, it is known as proximal convoluted tubule, and this part is called loop of Henle. This second part is called distal convoluted tubule.
अब ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इनका क्या काम होता है, ये सारे मिलके पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हैनले रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जो यूज़फुल सब्सटेंस फिल्टर होके आ जाते हैं यूरिन में, उसे रीअब्जॉर्ब करवा के हमारी बॉडी को देते हैं। डीसीटी फाइनली कलेक्टिंग डक्ट को जो फिल्ट्रेट है वो पहुंचा देता है। तो दिस एरिया इज़ कलेक्टिंग डक्ट। अब जब फिल्ट्रेशन होना है तो ब्लड फिल्टर करना है नेफ्रॉन को, तो एक आर्टरी ब्लड कैरी करके लाती है, और ये क्योंकि डिफ्यूजन होना है तो माइन्यूट स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती है ये आर्टरी, और फिर अगेन ब्लड जो एंटर किया वो यहाँ पर फिल्टर होगा ग्लोमेरुलस में, और ये जो कॉइल्ड पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। तो इस कॉइल्ड पोर्शन जिसे हम ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं वो फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। ये कैसे फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा कि जो आर्टरी ब्लड कैरी कर रही है, लेके आ रही है ब्लड को, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, और जो आर्टरी वापस लेके जा रही है ब्लड को, उसका डायमीटर है कम। तो यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होता है जिसके कारण ब्लड फिल्टर होता है और नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर और अदर मटेरियल एंटर करते हैं इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में। यहाँ से जो सब्सटेंस यूज़फुल हैं वो रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बॉडी के बाहर भेजा जाता है। तो ये है स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। एक बार देखिए फिर से, ग्लोमेरुलस जो ये कप शेप्ड पार्ट है, कप शेप्ड पार्ट के अंदर जो कॉइल्ड पार्ट है, वोमेंस कैप्सूल, दिस कप शेप्ड पोर्शन इज कॉल्ड वोमेंस कैप्सूल। इसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये है स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। यहाँ रीनल आर्टरी ब्लड को क्योंकि हमें पहुँचाना है नेफ्रॉन तक, तो जो आर्टरी ब्लड लेके आती है उसे बोलते हैं हम रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी अगर ब्लड को लेके आ रही है तो उसी के साथ ब्लड को वापस कैरी करने के लिए वेन होती है जिसे हम बोलते हैं रीनल वेन, और इंटरकनेक्टेड एक पूरा नेटवर्क बनता है आर्टरी और वेन का अराउंड नेफ्रॉन। ये पूरा स्ट्रक्चर हेल्प करता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज टू purify the blood or to eliminate nitrogenous waste from blood. So functions can be written as: the blood enters the kidney through renal artery which branches into many capillaries associated with glomerulus. The water and solutes are transferred to nephron at Women's capsule. In the proximal tubule, some substance as amino acids, glucose and salts are selectively reabsorbed and unwanted molecules are added in the urine. The filtrate then moves down into loop of Henle where more water is reabsorbed. From there, the filtrate moves upward from distal tubule and finally to collecting duct. Collecting duct collects urine from many nephrons. The urine formed in each kidney enters a long tube called ureter. From ureter, it gets transported into urinary bladder and then into urethra. Next question: what are the methods used by plants to get rid of excretory products? जैसे ह्यूमन बीइंग्स में अभी हमने देखा कि किडनी एंड नेफ्रॉन हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, वैसे ही प्लांट्स में कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन से ऐसे मोड हैं जिससे एक्सक्रीशन होता है। तो फर्स्ट मोड हमें मालूम है कि गैशियस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू हो जाता है। इसके अलावा सेकेंड मोड होता है जो रेजिन, गम प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो ऊज आउट किए जाते हैं डिफरेंट पोर से। थर्ड पॉइंट होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल वैक्यूल्स में इकट्ठा हो जाता है।
और कभी कभी ये सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल इकट्ठा हो जाता है लीव्स पे और वो लीफ टूट के गिर जाती है. तो डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज़ करते हैं प्लांट फॉर एक्सक्रीशन. आंसर कैन बी रिटन एज plants use completely different strategies for excretion than those of animals. They can get rid of excess water by transpiration. For other waste, plants use the fact that many of their tissues consist of dead cells and that they can even lose some part of plant such as leaves. Many plant waste products are stored in cellular vacuoles. Waste products may be stored in leaves that fall off. Other waste products are stored as resin and gum, especially in old xylem. Plant also excrete some waste substance into the soil around them. Question number 3. How is the amount of urine produced regulated? जो यूरिन प्रोडक्शन है उसमें कितना अमाउंट वाटर का निकलना है, कितना यूरिन प्रोड्यूस होना है, ये कैसे रेगुलेट होता है? ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी एंड अमाउंट ऑफ एक्सक्रीटरी मटीरियल. इसके साथ साथ एक हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH जिसे हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाता है, वहाँ से रिलीज़ किया जाता है. तो ये तीनों मिलके हेल्प करते हैं और मेनली एंटी डायूरेटिक हार्मोन डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा यूरिन का. आंसर कैन बी रिटन एज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर एंड डिजॉल्व वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी. Some other factors such as habitat of an organism and hormone such as antidiuretic hormone ADH also regulates the amount of urine produced. This is all for this chapter. Thank you so much.